So our first question is, who is the author of the solid mandala? So what is mandala? Mandala are the glass stones and they are related to Buddhist traditions, right? And who is the author of the solid mandala? I think all of you know the answer, that is Patrick White. And he's Australian writer. Yes. And the next question is, in which year was the solid mandala first published? So when was this work published? The answer is 1966. The next question is, what major recognition did Patrick White receive? So he was the winner of Nobel Prize in Literature. Now my question to you is, when did Patrick White got the Nobel Prize? When did Patrick White got the Nobel Prize? That is my question to you. And the answer to this is, because I saw the option, so I thought I should ask this. That is 1973. The next question is, the novel primarily focuses on the relationship between the two brothers. So what happens in this book is, the solid mandala is that there are two brothers who are twins and they both are very different. Their personalities are very different to each other. So what are the names of the two central characters? That is the next question. That is Waldo and Arthur Brown. And the setting of the novel, that this is the fictional town, right? Sarsa Parela is the fictional town which is based on which real area? That is Sydney. It is based on Sydney suburban, right? सो इस वाली स्टोरी में क्या होता है ना कि जो वॉल्डो एंड ऑथर है, ये दो भाई हैं बेसिकली एंड दे आर ट्विन्स. वन ऑफ देम इज इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम राइटर, एंड द अदर वन इज वेरी सिंपलिस्टिक एंड पीपल कॉल हिम फूल. So Arthur Brown is the person who is called as fool and he is called as smart. He's arrogant also about his smartness, and Arthur Brown has more, he's emotionally intelligent. His emotions are good. He's in that manners he is much more stable. But Waldo is the person who goes after the knowledge and he does not find happiness or peace within himself or in the society. So these are the two brothers. And next is, how many chapters is the solid mandala divided into? The answer is 4. What narrative style is used in the novel? So इस novel में कौन सा narrative style यूज़ किया गया है? The third person omniscient limited. इसमें 2 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर है जो दोनों भाई के पर्सपेक्टिव को इन्वॉल्व करके बताया गया है, 3 and 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज वॉल्डो ब्राउन बेस्ट कैरेक्टराइज्ड? अब आपको मैंने बता रखा है पीछे, तो आप बताओ क्या हो सकता है. वॉल्डो ब्राउन, वॉज ही इमोशनल एंड इम्पल्सिव? वॉज ही कोल्ड एंड रैशनल? केयरफ्री एंड ह्यूमरस? वीक एंड डिपेंडेंट? So the answer is cold and rational. Waldo is the person who is cold and rational. तो अगर Waldo Brown cold और rational है, तो Arthur Brown क्या था? Cold and analytical, warm-hearted and instinctual, aggressive and dominant, detached and logical? No, he was warm-hearted. Okay? और दोनों जो है together Waldo and Arthur symbolizes what? They symbolizes conflicting and कॉम्प्लीमेंट्री हाफ्स ऑफ ह्यूमन नेचर. की ह्यूमन नेचर जो है हमारा, जो ऑथर वही बता रहा है कि वो रैशनल भी होता है, वो इमोशनल भी होता है. तो वो इसके बारे में हमें बताना चाह रहा है कि दीज 2 ब्रदर्स आर पोल्स अपार्ट बट दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बट टुगेदर दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन नेचर. The next question is, how is Arthur perceived by society? As I
told you earlier, he was considered fool, so he was slightly regarded as slightly retarded. Right? The next is, by the end of the novel, Arthur is shown as have a better understanding of life than Waldo, because आर्थर जो है अपनी लाइफ में फिर भी बाद में जाके वो ठीक रहता है, एंड ही अंडरस्टैंड्स द थिंग एंड ही हैज़ एम्पैथी, राइट, ही इज़ अ लविंग ब्रदर. बट जो वॉल्डो ब्राउन क्या है, वो एक लाइब्रेरियन था, है ना, वॉल्डो ब्राउन जिसकी हम बात कर रहे हैं. जो वॉल्डो ब्राउन है, द वॉल्डो ब्राउन, he was a librarian and is a failed author. ऐसा उसे बुक में दिखाया गया है. और he fails in genuine human connections. और अगर आपको इसके बारे में एक और आप ऐड कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर है मिसेस पॉल्चर का, जो नेबर है इनकी. तो अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि नेबर का क्या नाम था, तो आप ये प्लीज़ नोट करके रखना कि नेबर का ये नाम था. एंड शी हैज़ अ वेरी गुड बॉन्ड विद आर्थर, एंड उसकी वो इस आर्थर के साथ और उसकी वो केयर भी करती है. सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक, दैट इज़ व्हाट डज द नॉवल अल्टीमेटली सिम्बलाइज. तो सिम्बलाइज क्या करता है ये हमारा इंटायर यूनिवर्स. दिस सिम्बलाइजेज आर इंटायर यूनिवर्स. ओके, सो दिस इज़ दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द सॉलिड मंडाला. आप ये देख सकते हो जो टाइटल है मंडाला, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है. तो वो एक्चुअल में यूनिटी को सिम्बलाइज करता है, एंड बिकॉज द मंडालाज आर ग्लास मार्बल्स, राइट, और ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के साथ रिलेटेड है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अनदर वर्क ऑफ मार्गरेट एटवुड, दैट इज़ द ब्लाइंड असैसिन. तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि किस, द ब्लाइंड असैसिन इज़ अ वर्क बाय मार्गरेट एटवुड एंड शी वॉज फ्रॉम कैनेडा, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज द ब्लाइंड असैसिन फर्स्ट पब्लिश. सो द आंसर इज 2000. यस. और जो ये नॉवल है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो नॉवल है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज़ मल्टी लेयर्ड, राइट. इसमें जो हिस्ट्री है, मिस्ट्री है और साइंस फिक्शन है, सब कुछ को मिक्स कर रखा है. इसमें जो मेन नरेटिव है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो कौन है, आयरिस चेज है. सो आयरिस चेज इज़ अ मेन कैरेक्टर, यही लिख देती हूँ मैं. और उसकी बहन होती है सिस्टर, ये होती है लॉरा चेज. जो स्टार्टिंग ही बुक की ऐसी होती है कि लॉरा चेज जो है वो सुसाइड कर लेती है बाय ड्राइविंग द कार ऑफ द ब्रिज, राइट. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो नॉवल है वो कहाँ सेट की गई है. द प्राइमली द नॉवल इज सेट इन, सो दिस इज द फिक्शनल टाउन वेयर इट इज सेट, पोर्ट Ticonderoga, yes, and Tornado. So this is the fictional town. So the next question is, which historical event is referenced in the novel? So this is Onto-Ottawa Trek. This is the answer, right? वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को इसमें डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, राइज ऑफ कम्युनिज्म हो गया, डिप्रेशन हो गया, द ग्रेट डिप्रेशन. इन सब चीज़ों को बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है. क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत पहले का था, बिकॉज इफ़ दिस नॉवल इज सेट ऑन 20th सेंचुरी, सो उसके इवेंट्स आप देख लो क्या क्या होंगे. वर्ल्ड वॉर हो सकती है ना, और डिप्रेशन का टाइम था, उसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है, उसे जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी बोला जाता है, एंड राइज ऑफ कम्युनिज्म जो रशिया से निकला था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. सो द आंसर इज आयरिस चेज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जब ये नरेट कर रही है अपनी स्टोरी, तो एट दैट टाइम शी इज़ 82 ईयर्स ओल्ड. तो बेसिकली जो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक. सो इसमें क्या है, मान लो कि ये हमारी है मेन बुक, राइट, दिस इज़ आर मेन नॉवल. इसके अंदर भी एक नॉवल है, ठीक है, इसके अंदर भी एक स्टोरी चल रही है साइंस फिक्शन और दूसरे प्लैनेट की, एंड दूसरे किसी प्लैनेट में कोई लोग रहते हैं उसके बारे में. इस बुक के अंदर एक बुक है उसके ऊपर भी चल रही है, जिसका नाम है ब्लाइंड असैसिन. और ये जब बुक पब्लिश करती है हमारी मेन कैरेक्टर दैट इज़ आयरिश, ये बोल के करती है कि ये वाली जो बुक है हमारी ब्लाइंड असैसिन, ये लॉरा ने लिखी है जो इसकी बहन है. बट एक्चुअल में ये जो बुक होती है ब्लाइंड असैसिन, ये किसने लिखी होती है, आयरिश ने खुद लिखी होती है, पर वो लॉरा का नाम लेती है कि लॉरा ने लिखी. क्यों ऐसा बोलती है वो आगे हम देखते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द स्टोरी प्राइमरीली स्ट्रक्चर्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है ये बहुत सारे लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बीच में डिस्कस की गई है. तो अगर बुक है जो बहुत लंबे टाइम पीरियड में, बुक शुरू कहाँ से होती है, जब ये दोनों छोटी होती हैं, आयरिश एंड लॉरा, ठीक है, जब ये अपने फादर की बात कर रहे होते हैं. उसके बाद जब बुक ख़त्म होती है तब आयरिश जो है वो ऑलरेडी एक ग्रैंड मदर होती है. तो अगर ये ग्रैंड मदर है तो इसका मतलब बहुत सारा टाइम चला गया ना, तो इसलिए ग्रेजुअल रेलिवेशन अक्रॉस टाइम लाइन्स. सो दिस इज हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड. The next question is what makes the novel structurally unique? How it is unique? Because it has a novel within a novel. Okay? So वही क्वेश्चन आ गया है. The blind assassin within the novel is initially attributed to. मतलब क्या बोला जाता है कि ये जो बुक है ब्लाइंड असैसिन, ये किसने लिखी गई है, आयरिश, लॉरा, एलेक्स, रिचर्ड. सो द आंसर इज लॉरा. शुरू में ऐसा लगता है कि ये जो किताब है लॉरा ने लिखी है. Who is later revealed as a true author of the novel within the novel, that is Irish. Okay? So the next question is why did Irish publish the novel under Laura's name? Laura के नाम पे Irish क्यों publish कर रही होती है? To honor Laura after her suicide. क्योंकि जो Laura होती है वो suicide कर चुकी होती है. What is the Alex Thomas known for? He was known for writing plum science fiction. Okay, so what is plum science fiction? Basically, राइटिंग विद इन दैट स्टोरी, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी और लाइक साइंस फिक्शन के बारे में. तो जो हमारी ये ब्लाइंड असैसिन नॉवल भी है, इसके अंदर भी एक बुक चल रही है. उस जैसे मैंने आपको ये वाली बात बताई थी ना, यहाँ देखो, ये हमारी मेन बुक है, इसके अंदर एक और नॉवल चल रही है जिसका नाम ब्लाइंड असैसिन रखा गया है. अब इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स है ना, और ये मैंने आपको बताया था किसी और प्लैनेट के ऊपर बेस है. अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्लैनेट की बात कर रखी है, तो ये है ज़ाइकॉन. ये आप याद कर सकते हैं. सॉरी इफ माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट कमिंग क्लीन. आई डोंट वॉन्ट टू मेक नॉइस ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग वेरी स्लोली एंड this is Zygon. Okay, that is the planet name. Okay, so we'll move ahead. What is the relationship between Alex Thomas and the sisters? He has ambiguous romantic connection. I mean, he was at some time romantically involved with both the sisters, Laura and Irish. What tragic event begins the novel? That is Laura's suicide. Okay? और कैसे करती है वो, कार को ब्रिज से नीचे गिरा देती है. What secret does Irish discover after Laura's death? अच्छा, आयरिश को क्या डिस्कवर होता है कि लॉरा की डेथ की वजह से क्या पता चलता है कि जो रिचर्ड है वो लॉरा को अब्यूज़ करता था. अब हु इज़ रिचर्ड? रिचर्ड वॉज अ हस्बैंड ऑफ आयरिश. तो आयरिश का हस्बैंड कौन है? रिचर्ड. और आयरिश को बाद में पता चलता है कि उसने सेक्सुअली अब्यूज़ किया होता है लॉरा को, और वो बहुत टाइम तक करता भी था ऐसे. वट एक्शन डज आयरिश टेक आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट रिचर्ड? तो जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है तो वो क्या करती है, वो उसको छोड़ देती है. शी लीव्स विथ हर डॉटर. एंड उसके बाद रिचर्ड भी सुसाइड कर लेता है. हाउ डज रिचर्ड ग्रिफिन डाई? एज आई टोल्ड यू,
he did suicide. What role does Rennie play in the sister's life? तो Rennie क्या है? She's a positive character who took care of these sisters. So she's a housekeeper and a mother figure, right? Who is Irish granddaughter, जिसके लिए आयरिश ये कहानी लिखना चाहती है ताकि सच किसी को तो पता रहे और कहीं तो इनकी सच्चाई और हाउ दे वर दैट शुड बी नोन टू हर ग्रैंड डॉटर, दैट इज सबरीना. हाउ डज द नॉवल कंक्लूड कैसे होती है? आयरिश भी मर जाती है और सच भी आ जाता है बाहर, ऐसे. सो दीज वर द MCQs ऑफ दिस बुक द ब्लाइंड असैसिन. इसमें एक क्वेश्चन जो आप आ सकता है वो ये भी है कि इस बुक ने कब बुकर प्राइज़ जीता था? तो 2000 में ही इस बुक ने बुकर प्राइज विनर. ओके, सो अब हम अगले वर्क पे चलते, दैट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका के ऊपर. तो इस सो इफ़ वी नो दैट दिस इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल पोएम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये एक पोम है. एंड हु रोट दिस? अब अगर आपको ऑप्शन से भी कई बार ना आप पता लगा सकते हो. आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये सारे जो है पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं, पर अफ्रीका से कौन बिलोंग करता है? इनमें से दो करते हैं. एक तो ये सोलंका एंड दिस डेरिक वॉलकॉट, एंड दिस इज़ अ वर्क बाय डेरिक वॉलकॉट. तो सबसे इजी काम अगर आप इस एग्ज़ाम को देखना चाहते हो तो सबसे पहले सिलेबस को देखो और ये देखो कि ये वर्क किसने लिखा है और कब लिखा है. अगर आप ये तीन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, वर्क, ऑथर एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो आप इसमें से आई बिलीव एक दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं. तो आप ऐसे भी ईजी एंड स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, राइट. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द पोएम रिस्पॉन्स टू विच हिस्टोरिकल इवेंट. तो इसमें कौन सा इवेंट को जो है जिसके बारे में जो हमारा पोएट है वो बता रहा है, दैट इज़ माओ माओ अपराइजिंग, जो 1952 और 1960 के बीच में चली थी. द नेक्स्ट इज द अपराइजिंग वॉज प्राइमरली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. ये अपराइजिंग किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी? तो द टू अफ्रीकन ट्राइब्स, नेटिव केनियंस एंड ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस, अफ्रीकन्स एंड अमेरिकन्स. अब देखो, अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी देखो तो आप देख सकते हो कि यार ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस के बारे में कोई अफ्रीकन ऑथर क्यों ही लिखेगा? अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स कैसे हो सकते हैं जब अमेरिकन्स बहुत दूर थे? तो या तो टू अफ्रीकन ट्राइब हो सकता है या नेटिव कीनियंस एंड ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हो सकता है. तो इसमें से अगर आपको देखना हो तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट. द नेक्स्ट इज वाई डज द स्पीकर फील कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट द रिबेलियन. तो इसमें रिबेलियन के बारे में वो ये बोलता है कि जो डेरिक वॉलकॉट है, ही हैज़ रूट फ्रॉम बोथ ब्रिटिश एंड अफ्रीकन. उसकी हेरिटेज मिक्स है, बिकॉज ही इज़ इंग्लिश बाय ब्लड बट ही इज़ लिविंग इन अफ्रीका, एंड वो अफ्रीका में ही उसे रहता है. तो ही इज़ लाइक, वेयर डज माई लॉयल्टी बिलोंग्स, विच आइडेंटिटी डू आई बिलोंग टू. सो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में भी है, और इसके बारे में वो फेमसली इस पोएम में लिखा है, आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ. तो इसके अंदर ब्लड ऑफ बोथ है. वेयर शाल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन, ये वाली जो लाइन है ये भी वो बोलता है. और इस वाली पोएम में वो ये बोलता है कि देखो, वॉयलेंस तो होना नहीं चाहिए. तो इस वाली पोएम में ही इज़ नॉट टेकिंग साइड्स ऑफ अफ्रीकन्स और द ब्रिटिश, ही इज़ कंडेमिंग बोथ, कि वॉयलेंस तो होना ही नहीं चाहिए और इसको कॉलोनियलिज्म भी नहीं पसंद. सो वाई डज द speaker feel conflicted about the rebellion? He dislikes the colonialism. He's not supporting British, but he's also not supporting the rebellion because he feels like they are using the violence which is killing humans, be it British or the African. What major theme is highlighted in the poem? So colonial legacy and identity crisis. कि मेरी loyalty कहाँ है, मैं किसका साथ दूँ? अगर मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ और मैं अफ्रीका में भी हूँ और मेरी हेरिटेज वो भी है, तो
where does one's loyalty belong? What literary device is used in Kikuyu quick as flies? अब what is this Kikuyu? These are tribes, a tribe, an African tribe, जिसके बारे में ये जो लाइन है ये पोएम से ली गई है. तो यहाँ पे जो डेरिक वॉलकॉट है इस ट्राइब को एज अ सिमली की तरह फ्लाइज के साथ कंपेयर कर रहा है. सो इसका आंसर हो जाएगा सिमली. सिमली को सबसे आसान तरीका, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इट इज़ अ सिमली? यू ऑल नो यू हैव टू एज और व्हाट लाइक का जहाँ पे यूज़ हो जाए वो सिमली होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक नया वर्क के ऊपर है, दैट इज डीकोलोनाइजिंग द माइंड इज रिटन बाय Ngugi wa Thiong'o. And he was from which country? Can you people tell me? जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे थे? केनियन. ओके. यस. सो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेज इन द बुक. तो इस ये जो बुक है इट इज़ कलेक्शन ऑफ 4 एसेज जो बेसिकली इसने थिंगो ने एक लेक्चर के थ्रू दिए थे. सो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? तो फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज. ही डज टॉक अबाउट एक्सटेंसिवली, वो लैंग्वेज के बाद में बात करता है ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर. ही डज टॉक अबाउट द अफ्रीकन थिएटर, राइट. ही डज जो लास्ट पार्ट है उसका द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेलिवेंस के बारे में बात करता है, पर वो पोइट्री के बारे में बात नहीं करता, वो फिक्शन के बारे में बात करता है. ओके, ही टॉक्स अबाउट फिक्शन. सो आ गया हाउ मैनी चैप्टर्स इन द बुक वर ओरिजिनली, मतलब बुक कितने चैप्टर. आई थिंक द क्वेश्चन इज लिटिल मिसऑर्गेनाइज. इसमें था कि जो बुक थी वो ओरिजिनली किस फॉर्म में थी. सो द आंसर इज लेक्चर्स के थ्रू थी वो. द बुक प्रेजेंट्स अ स्ट्रांगली डैश परस्पेक्टिव. विच परस्पेक्टिव इज शोन. अब आपको पता है वो रोमांटिक के बारे में तो बात नहीं करेगा, वो रिलीजन के बारे में चलो बात कर भी ले, साइंटिफिक के बारे में बात कर ही ले, बट अगर आपको ये पता चल गया है कि कौन ऑथर है इसका, तो आपको पता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात करेगा. वो एंटी इम्पीरियलिस्टिक टेंडेंसीज के बारे में बात करेगा ऑब्वियसली. द बुक Ngugi calls the book his, what does he call? He says farewell to English. अच्छा, इस वाली ऐसे में वो क्या बात करता है? वो ये बोलता है कि हमें इंग्लिश यूज़ ही नहीं करनी चाहिए. जो हम पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? जो भी हम किताबें लिख रहे हैं या जो भी ऑथर लिखना चाहता है उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना चाहिए. तो ही एक्चुअली अटैक्स चिनुआ एचेबे ऑल्सो, जो थिंग्स फॉल अपार्ट का राइटर था. यू नो थिंग्स फॉल अपार्ट, इसी का है पार्ट वो. थिंग्स फॉल अपार्ट का जो राइटर है चिनुआ एचेबे, तो उसके अगेंस्ट भी बात करता है बिकॉज इन दोनों के व्यूज़ बहुत अलग है. एचेबे ये बोलता है कि हम इंग्लिश यूज़ करेंगे तभी तो इंग्लिश वाले लोग हमारी चीज़ पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग बैक टू द एम्पायर, राइट. राइटिंग बैक टू द एम्पायर. पर इसमें नुगुगी ये बोलता है कि राइटिंग बैक द एम्पायर तो ठीक है, लेकिन इसमें हमें जब तक हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे तो हम अपने लोगों को ही नहीं बता पा रहे. मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो अफ्रीकन के जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो वर्किंग क्लास लोग हैं जो लेबर करते हैं वो मेरे वर्क को पढ़ ही नहीं पा रहे, मैं उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा. तो इसकी बात करते हैं. द लैंग्वेज प्रॉब्लम डिस्कस इन द बुक रेफर्स टू, क्या है इसमें, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर अफ्रीकन राइटर्स. इसमें ये बोलता है कि अफ्रीकन राइटर्स के पास एक प्रॉब्लम है, एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है. उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी भाषा में लिखें या हम इंग्लिश में लिखें, तो उनके पास एक ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है. द बुक ब्लेंड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इसमें ऑटोबायोग्राफी भी इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंस्टांसेस में नुगुगी अपने लाइफ के बारे में भी एग्जांपल्स देते हैं. वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड पेडागोलॉजी, मतलब लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, बट ही डज नॉट टॉक अबाउट द प्योर साइंस.
To whom is decolonizing the mind dedicated? It is writers in African language. जो अफ्रीकन की लैंग्वेजेस में जो राइटर्स नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं वो. In post-colonial studies, language is described as a weapon and site of conflict. इसमें weapon and site of conflict क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें नुगु की एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जैसे बेसिकली बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर पे एक अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं और जब वो स्कूल जाते हैं तो वो उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है. तो इससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आता है उनके दिमाग में ऑफ द लैंग्वेज. तो वो ये नहीं समझ पाते या एक तरह से उनका जो माइंड है वो कॉलोनाइज हो रहा है. वाई इट इज़ कॉलोनाइजिंग? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. सो दिस इज़ अ नियो कॉलोनिज्म. उसे नियो कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं कि अब हमें कौन, पहले ब्रिटिश आके तो चले गए हैं, वो तो कॉलोनियलिज्म था. एक न्यू किस तरह से हम दोबारा उनके नीचे हैं क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं. तो अभी भी हम इस चीज़ से बाहर नहीं आए हैं. और जो लैंग्वेज है वो एक वेपन आ गई है और साइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि हम अपनी लैंग्वेज बोलें या इंग्लिश बोलें. तो जो बच्चे स्कूल में जाते हैं या फिर बच्चों की भी नहीं, वो ऐसे जनरली बात कर रहे हैं कि अगर तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ रही है अफ्रीकन मैन के पास कि मेरी जो लैंग्वेज है उसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी नेटिव लैंग्वेज की रिस्पेक्ट ही नहीं है. रिस्पेक्ट सारी किसकी है? इंग्लिश की है. तो उनको खुद के बारे में बुरा लगता है कि अगर मैं अफ्रीकन लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंग्लिश बोलूँगा तो पढ़ा लिखा लगूंगा, तो मुझे इज्जत मिलेगी. इस बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस वॉज इट. सो अब हम नेक्स्ट वर्क के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ A Dance of Forest. So the first question is, who wrote this? Vol Solinka. He wrote this. Okay. And अगर ये देखें तो ये क्या है? This is a play. This is a play by Nigerian. He is a Nigerian playwright. And ये कब लिखा गया था, कब का है ये? 1960 का प्ले है ये. ठीक है. और ये जो पहली बार ये जब परफॉर्म किया गया था तब ये नाइजीरियाज़ के इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे अक्टूबर 1960 में ये बाहर दिखाया गया था. दिस वॉज प्लेड, राइट. तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हेन डिड द प्ले प्रीमियर? दैट इज़ 1960. And the play was performed to celebrate Nigerian independence. What is the central event of the in the play? The central event क्या है? The gathering of the tribes. एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी चल रही है, एक फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर कर रहे हैं और वहाँ पे वो बुला रहे हैं आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को जो मर चुके पूर्वज, ताकि वो उनको आशीर्वाद दे. लेकिन वहाँ पे जो फॉरेस्ट गॉड होता है वो क्या करता है? वो अच्छी आत्माओं को नहीं भेजता, वो दो मरे हुए लोगों को भेज देता है जो पहले से ही पीड़ित आत्मा थी. ठीक है. डेड मैन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, जो अपने पिछले जन्म में बहुत बुरी तरह से मरे होते हैं और उनको जिन्होंने मारा होता है वही इंसान उस फेस्टिवल में भी होते हैं. तो इट इज़ लाइक जो स्पिरिट्स हैं फॉरेस्ट की, उन्होंने इनको जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के सामने खड़ा किया होता है ताकि ये समझें, ताकि जो मरे हुए इंसान थे को शायद जस्टिस मिल सके या इन्हें एक दूसरे के सामने लाना इज़ लाइक अ डिवाइस बाय द ऑथर टू शो दैट कि नाइजीरिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर इतना प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है. हमें करप्ट सोसाइटी नहीं चाहिए. हमने जो पीछे जो भी हमने काम किए हैं उनसे हमें आगे बढ़ना है एंड वी नीड टू रिजेक्ट द करप्शन. सो ये एक तरीका है जिस तरह से जो हमारा जो ऑथर है वो फॉइल की तरह यूज़ कर रहा है. बाय शोइंग दिस event he is actually commenting upon the contemporary Nigerian society. Okay. Which god sends the unexpected spirits? That is Aroni. Who are the two spirits sent to the gathering? तो ये जो spirit है अरोनी जो है ये डेड मैन एंड डेड वुमेन को सेंड करता है. तो बेसिकली पहले एक तो फॉरेस्ट गॉड होता है और उसके अंडर में स्पिरिट होती है और जो स्पिरिट है वो इन दोनों
डेड मेन को एंड डेड वुमेन को भेजती है. फॉरेस्ट हेड अपीयर्स इन ह्यूमन फॉर्म एज ओबंजी. ओके, विच कैरेक्टर इज अ स्किल्ड कार्वर? डिमोक. So he was also in the past life he was a court poet. ही इज़ अ कोर्ट पोएट. और ये क्या करता है, ये ना पेड़ काटता है इस वाली लाइफ में. ये क्या है, ये कारपेंटर टाइप का इंसान है जो पेड़ काटता रहता है. एंड इसीलिए जो इसको एक गॉड है, वॉर गॉड, जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, पर दूसरा एक गॉड है, दैट इज नॉट गॉड, इशिओरो, जो इसे पनिश करना चाहता है डिमोक को, बिकॉज ये पेड़ काटता है. पर इसको हर बार बचा कौन लेता है? वॉर गॉड, जो ये ओगुन है. हु इज अ सिनिकल प्रोस्टिट्यूट इन द प्ले? दैट इज रोला, बट ये पिछले जन्म में महारानी होती है, मैडम टोर्टोइस. इन द पास्ट रोला वॉज नोन एज मैडम टोर्टोइस. येस. What literary technique is used to connect past and present characters? That is reincarnation. reincarnation ही यूज़ किया गया है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं इस प्ले में वो पिछले जन्म में कुछ और होते हैं, जिन्होंने डेड मेन और डेड वुमेन की किसी ना किसी तरह से डेथ में जिनका हाथ होता है, वही अब दोबारा रीकारनेट होके प्रेजेंट ह्यूमन में आए हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did Soyinka won नोबेल प्राइज? इसमें आपको सारे याद तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़, बहुत सारी डेट पास आती है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सब कुछ याद रहे. पर अगर आप रख सकते हो तो इट इज़ गुड. दैट इज़ 1968. फिर द नेक्स्ट इज द प्लेज वार्निंग एट द टाइम ऑफ नाइजीरियन इंडिपेंडेंस इज दैट. हाँ, तो इसी के बारे में बात कर रही थी मैं आपसे कि इसमें जो हमारा प्ले राइट है वो ये बोल रहा है कि इंटरनल करप्शन इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी ही बुरी है जितनी कॉलोनियल ऑपरेशन बुरा था, है ना. तो इसके बारे में हमारा जो वोल सोलंकी है वो बता रहा है. इसके बारे में एक आप पॉइंट याद कर सकते, एक आप ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि जो हमारे प्ले राइट थे सोयंका, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ नेग्रिट्यूड मूवमेंट. ये मूवमेंट जो पास्ट है ब्लैक अफ्रीकन्स का, उसको ग्लोरीफाई करती थी, एंड ही वॉज अगेंस्ट दिस ग्लोरिफिकेशन. तभी इस प्ले में भी वो बार बार पीछे जाके बताते कि हमने इतिहास में भी गलती की है, हम पहले भी अपने ही आदमियों के साथ बुरे रहे हैं, इसलिए अभी हमें कॉलोनियलिज्म से आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है. तो अगर इस स्टोरी में आप देखोगे कि जो डेड मैन है और डेड वुमेन है, दे वर एक्चुअली, डेड मैन वॉज अ कैप्टन, he was a good kind of he was a good officer in the army, जिसने मना कर दिया था कि मैं राजा आपके युद्ध को नहीं लड़ूंगा. क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि आप बहुत बेतुकी के रीज़न पे हमें भेज रहे हो, मेरे और मेरे सोल्जर्स को. और वो रीज़न ये था कि जो राजा है वो जो मैडम टोर्टोइस को लेके तो आ गया है, पर वो मैडम टोर्टोइस जो थी वो किसी और की वाइफ थी. देखो, जो इसमें प्रोस्टिट्यूट हैं इस जन्म में, वो पिछले जन्म में महारानी थी, क्वीन थी एक राजा की. ठीक है, ये राजा हो गया, ये राजा था. अब इसको बोलते हैं डेड मैन को, जो उस टाइम पे ही वॉज अ ऑफिसर, कि तुम जाओ लड़ाई करने. तो ये मना कर देता है कि मैं नहीं जाता. क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि आप ये रानी किसी की लेके आए हो, चुरा के लेके आए हो या कैसे भी लेके आए हो, तो इसके लिए मेरा और मेरे आदमियों का मरना इज़ नॉट वर्थ इट. क्यों हम इसके ऊपर लड़े? जो कि बात सही है, पर फिर ये एग्री नहीं करते और इसको डूबने के लिए छोड़ देते हैं.
और फिर इसके पीछे जो इसकी वाइफ है डेड वुमेन, वो प्रेग्नेंट होती है और ये बताया नहीं जाता कि वो कैसे मरती है, बट इट इज़ नॉट टोल्ड डायरेक्टली, बट आई थिंक वो भी मर ही जाती है प्रेग्नेंट। तो इस वजह से ये अब दोबारा री इनकारनेट होके अपने ही लोगों के सामने जा रहे हैं, जिससे प्ले राइट ये बता रहा है कि इफ़ हिस्ट्री इज़ नॉट गुड इट विल कम बैक टू यू। सो आपको उससे सीखना है और करप्ट कल्चर को ख़त्म करना है।